हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड एंड डे बाय डे corona cases are rising, but your competition is also rising. You have to remember these things. तो मतलब विदाउट एनी डिले वी हैव टू मतलब जो भी टाइम मिला है, आई थिंक दिस विल benefit you in a better way. uh, See, by this time it's not about prelims. You have to prepare for the exam completely. प्रीलिम्स के लिए अलग सा, मेंस के लिए अलग सा. आई डोंट थिंक मेंस के लिए इस बार इतना टाइम मिलने वाला नहीं है. सो you have to keep in mind all these things and keep studying, and you have got a brilliant opportunity this time. So we'll move forward with our government schemes. This video is a continuation for the last video. लास्ट वीडियो हमने हेल्थ सेक्टर और सोशल सेक्टर स्कीम्स के बारे में हमने देखा था. This video will be focusing on mostly on the economic aspects. Okay, we'll see what all are the economic aspects have to be covered. And like we have said, if you have gone through the last lecture, all these slides have been taken from the Transform India Government of India's site, so that the data is authentic. Economy data, economy terms में data should be data plays a key role, because डाटा कई कई मिसमैच होता रहता है. एक पेपर में एक दे देता है, दूसरे पेपर में कुछ और, मैगजीन में कुछ और. ठीक है. सो आई थिंक फॉर इकोनॉमी एस्पेक्ट्स, not only economy aspects, as far as government schemes are concerned, you have to go through the government websites. They are the brilliant sources for you. ठीक है, हमने ये तो कवर कर लिया. ठीक है. एंड सोशल सिक्योरिटी भी लास्ट वीडियो में हमने देखा है. ठीक है. नाउ विल बी डीलिंग विद इकोनॉमी एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. में सब कुछ आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, स्किल्स भी है, वुमेन, एग्रीकल्चर. इट्स अ कंबाइंड टॉपिक, आई वुड से. This video will fetch you good amount of knowledge, as well as at least 2 to 3 questions can be you can focus on those things. 2 to 3 questions can come from these government of India videos, I would say. Okay, so let's start with what things are. We'll start with the basic economics. I think these basic economics will be asked in your prelims or mains. And in general also you should know these things. The data given by government sources are very very important for your mains, in essay, everywhere it comes. Even precisely in prelims also you will get questions based on these things. And when government is saying these are the key indicators of our performance, then you have to focus these things. you know uh, we'll start with ease of doing business survey. ठीक है. इंडिया का रैंक अभी 63 है. ठीक है. एंड ease of doing business is a world bank's report, just remember. And see the rank of the performing indices in ease of doing business. Construction permits में we have gone 27 rank. And electricity, procurement of electricity 22, resolving insolvency 52, paying taxes 115, starting a business 11136. All the ranks have been improved. And these sectors are the key indicators to assess ease of doing business of a particular country. And uh, at least इतना याद रखिए कि there are around 10 indicators, but in this slide government has given only 6 indicators here. uh, but the importance of these indices are maybe reflected in prelims. Your mains also you can write these 6 points. The 6 points are very very crucial for your mains answer writing anywhere. Okay. And this is not only for the ease of doing business index, but on a whole you can assess the government. The performance of government is reflected in these indices. So you have to go through these things. These are very very important. Okay. And we'll move ahead. देखिए, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं. दिस वाज asked last year, and they asked it, which one of the following was not a sub index of
World Bank's ease of doing business. This was a 2019 question. Prelims में पूछा था ये. And you just see, the paying tax we have seen the rank, registering property we have seen, construction permits का हमने देखा था. These are, if you have gone through the government data, you could have answered this question very easily. ठीक है. Option is A. ठीक है. So this is how important government data is. So we'll move further. We'll see what can be done with all the data that we have collected from Transforming India. It's a very excellent site, I would say. You can also go ahead, but questions are framed directly from the government related sources only. I would like to say this point. See, you read lot of sources. कई कई मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कई मैगजीन पढ़ते हैं, आपको याद भी नहीं रहता है क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. बट when you are going through government data, go through it thoroughly मतलब every point is important, every word is important in government. ठीक है. So we'll move ahead. These are few of the slides given on ease of doing business on the site. आप ये साइट आप देख सकते हो, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार. ठीक है. दिस इज़ वेरी वेरी पावरफुल साइट आई वुड से फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट. आप कई तरह के मटेरियल पढ़ते हैं, बट ऐसे मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा. दिस इज वंडरफुली मेड आई वुड से. ऑल दिस डाटा, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, you know they made it very easy. And mostly गवर्नमेंट डाटा आप जितना भी आप देखते हैं, दे विल मेक इन अ वेरी लेमनिक टर्म्स. मतलब आप हिंदू एडिटोरियल पढ़ रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है. हिंदू एडिटोरियल आधा लोगों को तो समझ में आता नहीं है, बट गवर्नमेंट मटेरियल इज नॉट लाइक दैट. द वर्ड्स आर वेरी सिंपल, डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट. ठीक है. एंड ऑलवेज सिंपल इज इफेक्टिव. सिंपल इज मोर पावरफुल दैन कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स. तो सिंपल चीज़ें को आप पकड़िए एंड योर प्रॉब्लम्स इज डन. So in this, they have said that the rank has been increased, and for the last 2014 से लेके 2019 तक they have given the ranks of India in ease of doing business. So right now we are standing at 63. So just remember, आगे बढ़ते इसके इसके related ही. And see, this is also another slide of my government. They have given the ease of doing business highlights only. You know, Major highlights of ease of doing business. It says that India's rank jumps to 14 places in current year. India among the 10 most improved nations for 3 consecutive. See here, you can have this is a unique fact, I would say. India is ranked first among South Asian countries. Just remember this aspect. Okay. This such aspects are asked directly in prelims. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं क्या हुआ. And see, this is one slide related to economy on a whole. And they are saying that PMJAY आयुष्मान भारत, हमने पिछले लेक्चर में देखा था what is आयुष्मान भारत. And they have said that so and so this much crore has been disbursed, and these are all latest slides. You can rely on this data, or else if you have any doubt on this data, you can just go to Transforming India site and you can pick up. We have reduced your effort, I would say. All these slides we have reduced, and we have put it in a good way so that it will be easily accessible to students. And see here they have mentioned about FSSAI. ठीक है. फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है. इसमें ये दिया था कि 154% इंक्रीज फॉर FSSAI. इसके बाद आशा बेनिफिट पैकेज हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था. जस्ट गो थ्रू द वीडियो, यू विल कम टू नो अबाउट आशा. एंड अलोकेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. ठीक है. इसमें ज़्यादा खास नहीं, ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है. इसमें भी ये दिया हुआ है. एंड see here they have mentioned FAME phase 2. 10,000 crores have been outlaid for the FAME phase 2. So I would say in this slide, FSA's AI and this FAME phase 2 will cover it exclusively. The rest all are common entities. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. See, FSS AI, Food Safety and Standards Authority of India. See, की फैक्ट्स हमने ये उसी के साइड से लिया था.
जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का जो वेबसाइट है, उनका खुद का वेबसाइट है, उसी से ये डाटा लिया हुआ है। की पॉइंट्स जस्ट रिमेंबर, दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, एंड दिस वाज फॉर्म्ड अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006. You know, every word, just remember whatever is highlighted, they are the very very important aspects. And see, food, these appoint food safety authorities at the state level also. Okay, there is a administrative structure for FSSAI, and the main aim of food safety, you can, these 3 points, अगर आपको मेंस में भी कोई क्वेश्चन आया इसके रिगार्डिंग, because this is one of the interesting and important organizations of government of India. And see, they have given here also, this is under the administrative control of Ministry of Health and Family Welfare, not under agriculture, remember. And you can see these three things: science based standards to regulate manufacture, storage, distribution, import and sale of food. You know, this is an important point, I would say. Every point, every word, you just remember, note it down. And to facilitate the safety of food, you know, this point summarizes what food safety act is about. And FSS Act, you know, is a bucket of all the older laws. Older laws, you know, 7 older laws were brought into one umbrella. You can see here: Prevention of Food Adulteration Act 1954, Fruits Products Order 1955, Meat Food Products Order, Vegetable Oil Products, Edible Oils, Solvent Extracted Oil. This was These are all older laws. Milk and Milk Products Orders. You know, you can't remember all these things, but sometimes, you know, UPSC sadistically picks these things and gives you the question. You know, I would show you one question about FSSAI. This was asked in 2018 prelims. They asked about the first statement itself, they asked. So just remember, if you ask me, because if this is given in transforming India, then you have to know at least few things about the importance, at least कुछ तो पता होना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ्टी, इसके बारे में दो और पॉइंट देख लेते हैं। दिस इज एन ऑटोनोमस बॉडी, क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। ऑटोनोमस, ये खुद अपना डिसीजंस ले सकते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर है? ये इट्स अंडर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बस ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट बेसिक चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम रिलेटेड, दोज थिंग्स यू हैव टू नो दिस, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सी, दिस वाज अ क्वेश्चन आई वाज टॉकिंग अबाउट, इट वाज आस्क्ड इन 2018। 2018 में क्वेश्चन पूछा था। अब आप तो मतलब श्योरली आंसर करेंगे, बट व्हेन दिस क्वेश्चन केम इन द एग्जाम, दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई वुड से। सी, बिकॉज जनरली पीपल वुड नॉट नो दिस थिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज। हमने जो एक्ट्स देखा था, 7 एक्ट्स को वो रिप्लेस किया था। And they asked that this act, this is a correct statement, Prevention of Food Adulteration Act 1954, and this second statement is a wrong statement. They said that it is under the charge of Director General of Health Services. No, no, this is an autonomous body, हमने देखा था, ठीक है। Union Minister of, you know, such questions are asked in film. This was a 2018 question straight away. चलो आगे बढ़ते। चलो अब हम देखते हैं कि फेम इंडिया साइट भी हमने देखा था, दैट वाज अनदर एस्पेक्ट given in the slide. Actually, Fame India phase 2 क्या है? This was actually to promote electric cars. Why? To reduce the dependence on petrol and diesel. Or electricity has its own advantages. ठीक है? This was given in the cabinet decision. Cabinet ने decide किया था इसको. And you can see, you know, incentive दिया जाता है on purchasing of electric vehicles. And support 10 lakh electronic vehicles of two wheelers and 5 lakh of three wheelers and 4 lakh of you know 55,000 of four wheelers, so and so. It is also saying that 2700 charging stations will be established, grid pattern में establish करेंगे 3 by 3 kilometer radius, and we have already seen this, you know, 10,000. Just remember this aspect, you know, Fame India, they can ask you directly, Fame India scheme is related to what? Okay, it relates to electric cars. बस इतना आप याद रखिए, यू नो, बेसिक्स
बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यूपीएससी मेनली कैचेस ऑल दीज थिंग्स। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज ए इकोनॉमिक सर्वे डाटा। इसमें से आपको कोई फैक्चुअल चीज़ें मतलब एग्जाम रिलेटेड आपको मिलेंगे नहीं, बट आई जस्ट केप्ट दिस स्लाइड टू हैव अ जनरल व्यू। आपको एक जनरल व्यू होना चाहिए। दिस मे बी 2018-19, बट आप एक जनरल व्यू आप रख लीजिए। They have stated that the GDP growth on an average is 7.5% in the last 5 years, and services सर्विसेज सेक्टर का जो एक्सपोर्ट्स है, आप ये देखिए 14 लाख करोड़ है। इट्स अ वेरी बिग बिग अमाउंट, वेरी ह्यूज। सर्विस सेक्टर is such a huge, services from India are exporting to every other country in the world. So you can see the data given here. And forex reserves, first time they crossed 400 billion dollars. uh, आप ये याद रखिए, 400 बिलियन डॉलर्स क्रॉस करना, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर एनी इकोनॉमी, एंड इंडिया हैव अचीव्ड दिस। तो इतना याद रखिए, इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू ensure that these are all government given data। आप ध्यान में रखिएगा इसको। these are these can form a better answer rating in your mains also। there is a comparative analysis also on forex reserves 2015 से 2018 तक। अब स्टेटमेंट्स भी आ जाएंगे कि फॉरेक्स रिजर्व हैव इंक्रीज स्टडीली। ठीक है, तो ये स्टडीली इंक्रीज यही से मिल जाता है आपको आंसर इसका। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। दिस इज वन मोर स्लाइड। these things can be quoted in your mains। इसमें यहाँ पे कोई फैक्चुअल चीज़ नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू make you to see this thing। they have mentioned that bad loans have been decreased। ठीक है, bad loans of public sector banks have been declined from March 2018 to March 2019। It's a very important aspect for the economy and for the banking system on a whole also। See, because if bad loans have been reduced, you know, normal people, common man को loan बहुत आसान से मिल जाएगा। Banks would charge a less interest rate also। All these things will have a ripple effect in the economy। You'll have a lot of infrastructure development, you'll have a lot of confidence in the banking system, confidence in the public, all these things। bad loans, stressed assets के बारे में क्वेश्चन आया था। So इतना आप याद रखिए कि बैड लोन्स जो है कम हुआ है। अब यूपीएससी इसी को घुमा फिरा के पूछ लेते हैं कि मतलब बैड लोन्स इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसी में आप फंस जाएंगे। सो दिस इज एन ऑथेंटिक डाटा आई वुड से। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाटा इज ऑलवेज ऑथेंटिक। अगर यूपीएससी क्वेश्चन सेट करता है और उसका आंसर इफ इट इज नॉट मैचिंग विद गवर्नमेंट डाटा, यू कैन फाइल अ कोर्ट केस इन दैट। इतना कॉन्फिडेंटली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैगजीन्स का डाटा इतना ऑथेंटिक नहीं होता है। इवन न्यूज़पेपर्स they'll carry lot of bias and everybody will write their own opinion। गवर्नमेंट ने ये कहा, गवर्नमेंट ने वो कहा, मगर गवर्नमेंट ने क्या कहा वो कोई सही सा मतलब समझाते नहीं। these slides will explain you thoroughly। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी देख लीजिए। they have mentioned about the index of 8 core industries। core industries के बारे में बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था। विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑल्सो अबाउट कोर इंडस्ट्रीज। अब रोड कंस्ट्रक्शन की बात आया था यहाँ पे। इन द रोड कंस्ट्रक्शन दे हैव सेड दैट 12 किलोमीटर्स पर डे ले करते थे उस टाइम पे, नाउ दे हैव इंक्रीज टू अराउंड 30 किलोमीटर्स पर डे इन 2018-19। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स आई वुड से इंफ्रास्ट्रक्चर। एंड इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आप याद रखिए 2018 में इतना था, 2019 में इट इज़ अराउंड 356,000 मेगावाट्स। आप इसको कन्वर्ट करके देखिए कितना होगा। टेलीफोन कनेक्शंस इतना है, दे हैव रोज 2013-14 में इतना था, 2018-19 में इतना हो गया 118, अराउंड 120 करोड़ टेलीफोन कनेक्शंस आते हैं। दिस डाटा घुमा फिरा के आपको स्टेटमेंट्स में पूछेंगे कि इतना टेलीफोन कनेक्शंस है, बट एक जनरल एनालिसिस होना चाहिए कि मतलब कोई भी लेमैन को अगर पूछेंगे या फिर सिविल सर्विस एस्पिरेंट को पूछेंगे, इतना तो पता होना चाहिए कि रोड कंस्ट्रक्शन में भाई कितना मतलब पर डे का कितना ले कर रहा है। कोई बोलेगा 100 किलोमीटर ले कर देगा, हाँ कोई बोलेगा 200 किलोमीटर, कोई 500। मतलब गवर्नमेंट डाटा
ऑथेंटिक होता है, ठीक है। दे आर सेइंग 30 किलोमीटर्स पर डे, you may look at it at a very small thing, but regarding the considering the size of the economy, this is a big thing, ठीक है। ऐसे डाटा को आपको एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, एंड लाइक वी हैव सेड, 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा, दिस इज अ वेरी रिसेंट डाटा, दिस इज 29 मई 2020, इतना रिसेंट है, ये पीआईबी में आया था ये। सो आप बेसिक सम देख लेते हैं इसका। ये कौन पब्लिश करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर है ये डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट इसको पब्लिश करती है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री। अब ये 8 कोर इंडस्ट्रीज एक निमोनिक बनाया था। यू कैन हैव ए नंबर ऑफ निमोनिक्स, आपको जो इजी लगे वो निमोनिक आप ध्यान में रखिए। एंड आई हैव मेड दिस निमोनिक, रन, एनर्जाइज एंड स्टे कूल, कैरेट एंड नूडल्स आर कुक्ड एंड फ्राइड फॉर लंच। मतलब एक एक जनरल सा निमोनिक मैंने बनाया था, ठीक है। इससे आपको अगर याद रहता है तो फिर ठीक है, इट्स वेल एंड गुड। अगर याद नहीं रहता है तो फिर यू कैन गो विथ योर ओन निमोनिक, nothing harm in that. And I have arranged these things in the decreasing order of the weightage in the industry. जैसे बोल्ड जो लेटर्स किया था, आर, आर मीन्स रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, जस्ट अ मिनट, हाँ, अभी चलते हैं आर। आर पे जब आएंगे तो इट इज़ रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वेटेज भी दिया था, इट इज़ कैरिंग 28% ऑफ वेट ऑफ द इंडस्ट्री। तो ई, नेक्स्ट ई पे आ जाते हैं। ई इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रिसिटी, इस पे आया था अराउंड 19% शेयर है उसका। एंड एस, नेक्स्ट इज एस, एस, एस क्या है? एस, एस इज फॉर स्टील। एंड सी, सी इज फॉर कोल एंड कैरेट, the C, another C is crude oil. N is for natural gas, and another C is for cement, and F is for fertilizer. Fertilizers is the last one, which carries a 2.6 percentage of weight. This data is taken from PIB, ठीक है। तो इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट दी alarming facts you can see here, all these industries have registered a negative growth in 2019-20, mainly because of COVID। कोविड की वजह से ही, मतलब ज़्यादातर ये लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर लॉस ऑफ प्रोडक्शन हुआ है। इसमें ये स्टेटमेंट भी दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ कोविड पैंडमिक देर इज़ अ लॉस ऑफ प्रोडक्शन, इसमें दिया हुआ है। एंड यू कैन सी दी दिस ग्राफ, मतलब ये दिस इज़ अ मंथली ग्राफ। अब मंथली ग्राफ में आप ये देख लीजिए कि अप्रैल से लेके यहाँ तक तो ठीक था फरवरी में। अब फरवरी में एकदम शार्प डिक्लाइन हुआ था। फरवरी के बाद अप्रैल, मतलब दिस इज ऑलमोस्ट -38%। मंथली में आप देखेंगे तो दिस इज ए ह्यूज सेटबैक टू द इंडियन इकोनॉमी। अब कोरोना ने मतलब पूरा दुनिया को तो हिला ही दिया, इंडिया को भी मतलब काफ़ी नुकसान पहुंचा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कोर इंडस्ट्रीज। अब आप भूलेंगे नहीं कोर इंडस्ट्रीज के बारे में, जो भी क्वेश्चन आता है यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट, ठीक है। वन इज, दे कैन आस्क यू DPIIT, who publishes this index, and this mnemonic is very very important, and the decreasing order ये भी पूछ सकता है कि किसका वेटेज कितना है, ठीक है। आई थिंक दिस स्लाइड इज एनफ फॉर योर कोर इंडस्ट्रीज। अब आगे चलते हैं इंसॉल्वेंसी लॉ के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, आई वुड से, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का केसेस, मतलब जो दो कंपनीज के बीच में हो सकता है, या फिर दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, जो मतलब नॉर्मल टर्म्स में भी अगर पैसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो इट्स नॉट इजी टू सेटल डाउन दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब आपने किसी को 10,000 रुपये दे दिया, उसे वापस लेना इतना मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है। जस्ट इमेजिन दी इंसॉल्वेंसी एट द लेवल ऑफ मल्टी क्रोर्स, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ क्रोर्स, ठीक है। तो उसमें इंसॉल्वेंसी में क्या क्या हो सकता है ये स्लाइड में दिया हुआ, ठीक है। दे हैव अमेंडेड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, आप ये देख सकते हैं, एंड देयर इज ए ट्रिब्यूनल फॉर दिस,
National Company Law Tribunal, and they fixed the time period to be 330 days. 330 days आपको लगता होगा कि एक साल तो लग जाएगा इसमें, बट दिस इज हाउ इट मे टेक इयर्स ऑफ टाइम। एंड इतने इयर्स में अगर मान लीजिए आप कम से कम 100 करोड़ या 200 करोड़ कोई किसी को देना है, उस पर इंटरेस्ट ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, सो सॉल्विंग दीज केसेस आर वेरी प्राइम इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। And corporate restructuring of NPS, this is also one of the key aspects। हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंसॉल्वेंसी के बारे में, जो कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में भी हम देखेंगे। एंड विल सी अबाउट द की फीचर्स ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। दिस फोर टर्म्स आप ध्यान में रखिए: इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एडजुडिकेटर। ये एडजुडिकेटर के कैटेगरी में ये आ जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसमें यह है कि मतलब कुछ ना कुछ कंपनीज का कितना टाइम पीरियड है, 180 डेज है या फिर 90 डेज है, दीज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपके मेंस के आंसर के लिए या फिर फिल्म्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए these four things you can remember। And as far as the company law tribunal, uh, you can see this is a quasi judicial body, it is set up under the Companies Act, इतना आप याद रखिए इसके बारे में। and this will be an arbitrator between the proceedings related to insolvency। मतलब जो कंपनीज के रिगार्डिंग कंपनीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स हो रहा है उसके लिए ये आर्बिट्रेशन करता है एंड देन गिव ए डिसीजन। बट the decision is not binding also, you can appeal to the Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं इसके रिलेटेड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एनसीएलटी। एंड इसी के दौरान मैंने ये भी डाला था कि कैट के बारे में। जनरली ट्रिब्यूनल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज। आप याद रखिए कि कोई भी अगर स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन में आ जाता है, ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ ए पार्लियामेंट। ठीक है, क्या इवन कैट आप देख सकते हो, कैट इज एन ट्रिब्यूनल अंडर दिस एक्ट, आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 322B भी ट्रिब्यूनल्स के रिलेटेड ही है, बट ये सेंट्रल ट्रिब्यूनल्स का है, और ये इवन स्टेट गवर्नमेंट कैन सेट अप देयर ट्रिब्यूनल्स आल्सो। ठीक है, उसके लिए मतलब स्टेट लेजिस्लेचर कैन डू दोस थिंग्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है प्रोविजन से, थोड़ा आप देख लीजिए इसके रिलेटेड। दीज आर आल्सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। जब ये बात आया तो ये मैंने यहाँ पे डाला था कैट के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं। एंड यहाँ पे ये दिया था रिकवरी रेट के बारे में। अब रिकवरी रेट जो है, मतलब पैसे जो दिया है वो रिकवर हो चुका है 70% केसेस बता रहे हैं 2019 में। एंड टाइम टेकन फॉर रिकवरी इट इज 1.6 ईयर्स। मतलब अर्लियर इट वाज 4.3 ईयर्स ये दिया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, दिस मे बी अ क्वेश्चन इन मेंस में ये क्वेश्चन जरूर आता है, जरूर आएगा। रिमेंबर दीज फैक्ट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद हम आ जाता है कि फाइनेंस सेक्टर में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या डिसीजन लिया था। अलोकेशन ऑफ 70,000 करोड़ फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक रिकैपिटलाइजेशन। ठीक है, अब ये भी बता रहा है कि रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आरबीआई शुड बी इंक्रीज ओवर एनबीएफसी। एनबीएफसी के बारे में डिटेली देख लेते हैं। एंड दे आर आल्सो सेइंग स्टेप्स टू बी टेकन टू अलाउ एनबीएफसी टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म। ये क्या है? these things are sometimes picked up by UPSC straight away from these। मतलब जब गवर्नमेंट बता रहा है कि क्या है ये, चलिए देख लेते हैं कि ये एनबीएफसी क्या है एंड ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म क्या है। विल सी एनबीएफसी के बारे में। दीज आर द की पॉइंट्स। ये तो विकिपीडिया से ही लिया था, बट दीज आर एनफ फॉर योर एग्जाम। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज आर देयर। आप इतना याद रखिए कि दिस इज ए कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। These are not like banks, but almost perform like a bank। आप इतना समझ सकते हो। NBFC and microfinance institutions।
these are key sectors in the economy. Small मतलब जो छोटे टर्म पे आप देखेंगे तो these play a different role. आप ये देख सकते हैं कि ये these are all NBFCs, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, गोल्ड लोन, NBFC जो मुथूट फाइनेंस हम देखते हैं, मलप्पुरम गोल्ड लोन जो देते हैं, those are all NBFCs. These are controlled by RBI. You just remember, इसके लिए भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी RBI ही है. एंड what is the difference between NBFC and a bank? आप ये these are key aspects I would say. बहुत सारे हैं, but just remember they cannot accept the demand deposits, they cannot issue checks. जो रूटीन बैंक्स करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, मतलब आपने खाता ओपन कर लिया, आपने सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट करते गए, दोज आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स. मतलब रफ आइडिया में दिया था आपको. सो एनबीएफसीज में आप ऐसे खाता ओपन करके सेविंग्स अकाउंट खोल नहीं सकते. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन. एंड चेक, जब खाता ही नहीं है तो चेक कहाँ से दे, चेक बुक कहाँ से मिले? सो ऑब्वियस. एंड दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिजर्व रेशियोज. जो CRR है, SLR है, दीज आर ओनली फॉर द मेनली फॉर द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स. एंड बैंक्स के लिए है, एनबीएफसीज के लिए ये लागू नहीं है. एंड just remember these are the most important aspects of NBFCs. I would say इतना enough है. अगर कोई करंट रिलेटेड आ जाता है तो फिर वो अलग बात है, बट these are the basics of NBFC you can say. उसके बाद आते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, TRDS. ये भी क्या है सिस्टम देख लेते हैं. ये this is also taken from a bank side, not from the RBI. बट एक जनरल बैंक के ऊपर ये दिया हुआ था तो हमने ले लिया था. दिस इज वेरी ऑथेंटिक डाटा. एंड ये इनिशिएटिव RBI का है. एंड ये खासकर मतलब एक सिंपल टर्म्स में इतना मैं बता दूंगा कि इसमें कोई आदमी बेचेगा, कोई आदमी खरीदेगा. सिंपल टर्म्स में इतना ही है. तो कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, आप ये देख सकते हैं. ये दिस इज मोस्टली रिलेटेड टू MSME. ठीक है, MSME सेक्टर के रिलेटेड है ये. पेमेंट्स में सेलर्स कौन है? MSME सेलर्स ये है, ये सब लोग MSME सेलर्स में आते हैं, सेलर कैटेगरी में. बायर्स कौन है? इसमें बायर्स कॉर्पोरेट्स है, ये देख सकते हो आप. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी है. एंड RBI परमिट करता है इनको. इवन NBFCs कैन ट्रेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म. दैट इज द न्यूज़. सो आप ये देख सकते हैं TREDS, ये सिस्टम जितने भी है, दिस इज रेगुलेटेड बाय RBI. एंड RBI हैज ऑल द अथॉरिटी कि कौन बेचेगा यहाँ पे, कौन खरीदेगा. और रिसेंटली RBI हैज सेड दैट इवन NBFCs कैन बी ट्रेडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो. सो इतना आप याद रखिए, इतना डीपली जाएंगे. इकोनॉमी एक समंदर है. इकोनॉमी you won't find the end point कभी नहीं मिलेगा, बट एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होना चाहिए. दीज आर द बेसिक्स. देखिए फाइनेंसर्स में लास्ट कैटेगरी में ये दिया हुआ है कि एज मे बी परमिटेड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो मतलब RBI के हाथ में है कि NBFC इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा. बहुत हल्का मत समझिए. ये ऐसे यही वाला ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम्स में या मेंस में. दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन what is trade receivables discounting system and why RBI is introducing NBFCs into this system. ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में आना चाहिए कि क्या क्या है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड अब आप समझ लिया होगा कि ये आप समझ लीजिए. स्टेप्स टू बी टेकन टू अलाउ NBFCs to directly participate in trade receivables discounting system platform. अगर मतलब इसका फायदा क्या है, मतलब आप एक कॉमन मैन की तरह सोचेंगे तो इतना है कि मतलब द परचेजिंग एंड सेलिंग और द स्ट्रेंथनिंग ऑफ इकोनॉमी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आ जाता है. सो NBFCs भी इंक्लूड अगर हो जाता है तो इट वुड improve the scope. It will just improve the scope of TREDS system. ठीक है, तो important points to remember is NBFCs are under the authority of RBI.
ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए। और एनबीएफसी को इस प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन अलाउ करता है? आरबीआई अलाउ करता है, नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूपीएससी माइट कंफ्यूज यू सेइंग दैट these things are controlled by मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या फिर such options will be given, but it's not these departments, it is RBI, just remember। आगे चलते हैं। इसमें ये दिया था कि कॉर्पोरेट टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया गया था 25% से 22% आया था। अब इसके लिए अलग से स्लाइड भी बनाया था, विल सी इन दैट, बट दिस इज कॉर्पोरेट टैक्स मतलब कम हुआ। वाई? बिकॉज कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा था, 25% बहुत ज़्यादा होता है। दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स, एंड यहाँ पे दिया हुआ है सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी एनहांसमेंट कॉर्पोरेशन, इसके बारे में देखते हैं हम। एंड सबवेंशन फॉर और जीएसटी रजिस्टर्ड एमएसएमईज to promote SC/ST entrepreneurs, stand up India scheme is one of the very important schemes of government of India। हम देख लेते हैं डिटेलली, हम देख लेते हैं कि क्या है ये स्टैंड अप इंडिया के बारे में। स्टैंड अप इंडिया इज मेनली फॉर SC या ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, ये तीन बेनिफिशियरीज है इसके लिए। what the scheme is, मतलब to encourage these people in the entrepreneurship of small companies। उनका खुद का कंपनी आप खोल सकते हैं। एंड दिस अंडर दिस स्कीम बैंक लोन्स अवेलेबल हो जाता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक। ठीक है, दिस थिंग्स जस्ट रिमेंबर, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए कि SC/ST एंटरप्रेन्योर या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर, दे शुड बी अबव 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड ओनली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। ओनली मतलब एक्सट्रीम है, ये नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिए। And these loans are only for greenfield projects, not for the brownfield। greenfield brownfield आप जानते ही है, greenfield मतलब फ्रेशली कोई स्टार्ट कर रहे हैं, brownfield मतलब ऑलरेडी स्टार्टेड को रिनोवेट या फिर रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, इतना बेसिक डेफिनेशन है उसका। एंड ये थोड़ा बेसिक क्राइटेरिया है, वो SC होना चाहिए, ST होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर इंडिविजुअल को भी दे सकते हैं, एंटरप्राइज को भी दे सकते हैं, या फिर अगर वो एंटरप्राइज है तो 51 शेयर होल्डिंग शुड बी विद आइदर SC/ST या फिर वुमेन। ये एक क्राइटेरिया। स्टैंड अप इंडिया के बारे में आप याद रखिएगा, दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, ऑलवेज फोकस्ड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। मन की बात में भी ये बताते हैं, स्टैंड अप इंडिया में हमने इतने SC/ST एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया था, इतने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को डेवलप किया था। ये काफ़ी डिबेट्स डिस्कशंस में आते हैं। सो जस्ट रिमेंबर, दे में आस्क यू स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। एंड इसके अलावा एक और भी है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, विल सी इट लेटर। स्टार्टअप इंडिया भी है इसके साथ, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ वी कैन रिमेंबर दीज थिंग्स। उसके बाद हम आ जाता है कि FDI के ऊपर बहुत बात चलता रहता है। 100% now 100 FDI is allowed, is permitted in the insurance intermediaries। इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज में भी 100% अलाउ कर दिया है कि, एंड लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स तैयार कर रहे हैं अभी। एंड चलिए अभी ये देखते हैं, एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। बेसिक मतलब ये इसमें हम देखते हैं कि FDI क्या होता है। FDI के ऊपर मतलब एक बेसिक डाटा मतलब हम देख लेते हैं। सी दिस इज एन FDI इनफ्लोस। आप इसी से एक क्वेश्चन बन जाएगा, FDI इज इंक्रीजिंग स्टडीली फॉर द लास्ट 5 years। ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो यू सीधा मार्क कर सकते। फॉर द लास्ट, दिस इज ए होली गवर्नमेंट डाटा, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं हो सकता। 2013-14 में इतना था और 2018-19 में इतना हो गया, एंड द ग्रोथ हैज बीन स्टडी, कोई हिकअप्स नहीं है, तो स्टडीली ग्रो होते रहेगा, रोबस्ट। इसलिए ये दिया था कि रोबस्ट FDI इनफ्लोस डिस्पाइट ग्लोबल हेडविंड्स। अब ये FDI के बारे में कुछ जानकारी हम जानते हैं कि FDI क्या होता है। FDI इज जनरल लाइक फॉरेन डेवलपमेंट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सॉरी। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कोई फॉरेनर अगर इंडिया में आके कोई कंपनी को फॉर्म करना है या फिर उनको कोई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है,
उसके रिलेटेड कुछ नॉर्म्स गवर्नमेंट ने सेटअप किया था, एंड वी हैव टेकन द साइट द डाटा रिलेटेड टू एफडीआई फ्रॉम द इन्वेस्ट इंडिया. दिस इज ए डायरेक्ट साइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. आप इसमें पूरा एफडीआई रिलेटेड डाटा एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर. इसमें हम बेसिक्स हम ये देख सकते हैं कि देर आर 3 कैटेगरीज फॉर एफडीआई टू एंटर. इसमें कैटेगरी 1 दिया हुआ है. कैटेगरी 1 इज ए ऑटोमेटिक रूट, मतलब कोई गवर्नमेंट का परमिशन की जरूरत नहीं है. ऑटोमेटिक रूट का मतलब यही है. 100% मतलब ऑटोमेटिक रूट मतलब 100% उसका. अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी सेटअप करने के लिए उसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आके 100 करोड़, कोई परमिशन की लेने की जरूरत नहीं. ऐसे क्या क्या कैटेगरी से, बहुत सारे कैटेगरी से. बट जस्ट इमेजिन, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ एफडीआई कैन एंटर द इंडियन इकोनॉमी. कैटेगरी 2 में ये है गवर्नमेंट रूट, विच इज अप्रूवल रूट. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी है कि दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनली देन फॉरेनर्स कैन इन्वेस्ट. ऐसे भी रूट है. एंड तीसरा कैटेगरी ये बता रहा है कि गवर्नमेंट प्लस ऑटोमेटिक, मतलब कुछ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ सकता है, कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ आ सकता है. परसेंटेजेस वेरी करता है कि 49% इज अलाउड इन दी ऑटोमेटिक रूट, 51% इज अलाउड थ्रू ऑटोमेटिक रूट, ऐसा दे देते हैं. सो 3 कैटेगरी आप ये दे सकते हैं. ऑटोमेटिक रूट का डेफिनेशन दिया हुआ है, गवर्नमेंट रूट का डेफिनेशन भी दिया हुआ है इसी साइड पे. वन इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट आई वुड से, क्या क्या सेक्टर्स में एफडीआई प्रोहिबिटेड है. दिस इज लेटेस्ट डाटा. एक एक कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से याद रखना है. ऐसे क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी. यूपीएससी झटका दे सकता है कि इस सेक्टर में एफडीआई इन्वॉल्व कर सकता है, कि एफडीआई हो सकता है कि नहीं हो सकता है. ये स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग. लॉटरी बिजनेस में एफडीआई नहीं हो सकता है. ठीक है, गैम्बलिंग एंड बेटिंग नहीं हो सकता है कैसीनोस में. चिट फंड्स नहीं हो सकता है. निधि कंपनी, ट्रेड इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट में नहीं हो सकता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेस में नहीं हो सकता है. दिस इज अ वेरी कॉमन ऑप्शन. एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ cigars, cigarettes, tobacco related products, FDA is not allowed in this. Sectors not open to private sector investment like atomic energy, railway operations. You know, these are the areas which FDA is not permitted. ये एरियाज आप याद रखिए, इतना याद में रखिए. दीज आर द बेसिक्स ऑफ एफडीए. अब इन डेप्थ जाएंगे, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर दीज बेसिक्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसमें हम देख सकते हैं कि एफडीए आल्सो प्रमोट्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इंडेक्स में भी हमें एफडीए ज़्यादा आ रहा है, तो मतलब द इंडेक्स आल्सो मे बी इम्प्रूव. सो नए चीज़ क्या क्या है ये आप ध्यान में रखिए कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी अभी एफडीआई परमिट किया हुआ है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज दिस थिंग, कोल माइनिंग. कोल माइनिंग में भी 100% एफडीआई एंड ऑटोमेटिक रूट अप्रूव किया था. दिस कैन बी ए की पॉइंट फॉर फिल्म्स एज वेल एज मेन्स. सिंगल ब्रांड रिटेल में भी मतलब इनिशिएटिव तो कर रहे हैं. आगे चलता है. ये तो हमने पहले भी देखा था, इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज का एंड मीडिया एंड एनिमेशन का, ये हमने पहले भी देखा था. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं रुपे कार्ड के बारे में. आई थिंक दिस ईयर देयर इज अ लाइकली क्वेश्चन ऑन रुपे कार्ड. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि द इम्पोर्टेंस ऑफ रुपे कार्ड हैज बीन ग्रोन ए लॉट. अब पीएम मोदी जी ने खुद ये लॉन्च किया था सिंगापुर में, भूटान में और यूएई में. एक्चुअली रुपे है क्या? जस्ट लाइक मास्टर हो गया, वीसा हो गया, इट्स सिमिलर टू रुपे, बट ये हमारा देसी है, इंडिजिनस, जो इंडियंस ने बनाया था ये रुपे. अब ये बनाया किसने? एनपीसीआई ने बनाया था. एंड एनपीसीआई इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में एक क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आता है प्रीलिम्स में. एंड यू कैन सी द डाटा. 2013 में रुपए का जो मार्केट शेयर है 0.6 था, अब 2018 में इसको 50% हो गया. एंड दे आर एक्सेप्टेड इन 195 कंट्रीज. दीज थिंग्स जस्ट कीप इन माइंड. रुपए के बारे में कुछ पूछ सकते हैं. फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये क्या है? लास्ट टाइम भीम ऐप के बारे में हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था. तो थोड़ा डीपली चलते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है.
एंड IMPS, IMPS के बारे में तो सब जानते हैं, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसके बारे में भी गवर्नमेंट ने खुद ये डाटा दिया था, ट्रांजैक्शन काउंट कितना है, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना है, so and so this much big amount of transactions are happening through IMPS। ठीक है, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर है। उसके बाद भीम ऐप, दीज आर ऑल रिलेटेड टू डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया भीम UPI भी ये बता रहा है कि 1 बिलियन ट्रांजैक्शंस हैव बीन क्रॉस्ड। ठीक है, भीम ऐप के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था, बट दैट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें ये पूछा था कि फैक्टर ऑथेंटिकेशन कितना है, कितना लेयर्स ऑथेंटिकेशन होता है। दैट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट जनरल टर्मिनोलॉजीज तो आपको याद रखना है। सी दिस इज a direct site of NPCI, National Payments Corporation of India। This is set up under Indian government and RBI guidelines। अब ये NPCI क्या क्या बनाता है, जस्ट रिमेंबर, UPI बनाती है, रुपे कॉन्टैक्ट लेंस, रुपे कार्ड बनाते हैं, भीम, IMPS, भारत बिल पे, इसके बारे में हम देखते हैं, और ये USSD *99#, NACH, इसके बारे में हम देखते हैं, CTS तो ठीक है, NFS, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, नेशनल फाइनेंशियल स्विच के बारे में एक क्वेश्चन आया था। ऑल ATMs आर लिंक्ड बाय दिस। NPCI is a very important organization, you have to remember these things। इतने सारे चीज ये करती है NPCI। एक क्वेश्चन तो सीधा आया था कि नेशनल फाइनेंशियल स्विच ATMs अक्रॉस द इंडिया आर हैंडल्ड बाय होम, NPCI। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सारे चीज जो है NPCI बनाती है। अब ये थोड़ा थोड़ा उसी साइड से लिया था, NPCI की साइड से। नेशनल फाइनेंशियल स्विच आप पढ़ सकते हैं, बट कुल मिला के ये है कि ऑल द ATMs इन इंडिया आर नेटवर्क थ्रू नेशनल फाइनेंशियल स्विच। थोड़ा आप इसका बैकग्राउंड ये यहाँ पे दिया हुआ है, बट जस्ट गो थ्रू दीज थिंग्स, दीज आर इम्पोर्टेंट। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये RBI का कॉन्सेप्चुअलाइज सिस्टम है, NPCI नहीं बना रहा है इसको। एंड दिस इज ए वन स्टॉप इकोसिस्टम फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स, प्रोवाइडिंग एन इंटरऑपरेबल एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर। ठीक है, ये बिल पेमेंट्स के लिए ये काफ़ी काम आ जाता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। एंड IMPS के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट गो थ्रू दिस थिंग। इतना मतलब थियोरेटिकली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट द लेयर्स ऑफ फैक्टर, कितना लेयर। भीम ऐप के बारे में ये पूछा था कि इट्स अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। वो फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में विल टेक अ डिफरेंट स्लाइड, बट ये सब आप देख लीजिए। NACH, इट्स अ नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसके बारे में खाली इतना याद रखिए, दिस इज फॉर ओनली फॉर द बल्क ट्रांजैक्शंस। ठीक है, टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडीज, डिविडेंड्स, इसके लिए बल्क ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करता है। ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय NPCI। इसलिए NPCI इतना इंपॉर्टेंट होता है। रुपे कार्ड इज प्रिपेयर्ड बाय NPCI, भीम ऐप इज प्रिपेयर्ड बाय NPCI, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे चलते, you can see the value of RuPay transactions, volume of RuPay transactions, 118.97 millions, इतना ट्रांजैक्शंस हो रहा है अभी रुपए कार्ड से। देन दिस इज रिलेटेड टू बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग में क्या क्या मेजर थिंग्स हुआ था, दीज आर ऑल रीसेंट न्यूज। मर्जर ऑफ कैनरा बैंक एंड सिंडिकेट, दोनों मर्ज हुआ था। ये कभी कभी ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, बट कभी कभी आ सकता है। ठीक है, बिकॉज दिस इज द 4th लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अभी ये बन गया है, मतलब इट्स अराउंड 15 लाख करोड़ अराउंड है, बहुत ज़्यादा है। 15 लाख करोड़ इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग। उसके बाद PNB, पंजाब नेशनल बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों मर्ज हो गए एंड दे हैव बिकम द सेकंड लार्जेस्ट PSB। उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ये मतलब तकरीब मतलब अभी अप्रैल में हुआ था, ये अप्रैल 2020, 14 लाख करोड़, दिस इज द 5th लार्जेस्ट। एंड इंडियन बैंक एंड अलाहाबाद बैंक, ये दोनों मर्ज हो गया।
ठीक है। सो व्हाई दीज बैंक्स आर मर्जिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैं बता दूंगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जस्ट इमेजिन, मतलब क्या मर्ज करने का क्या क्या फायदा है, इतना बड़े बड़े बैंक्स मर्ज क्यों हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। जस्ट रिमेंबर, बट एंड ऑन द फैक्चुअल फ्रंट आल्सो जस्ट रिमेंबर, कैनरा बैंक किसके साथ मर्ज हुआ, सिंडिकेट के साथ हुआ। पीएनबी किसके साथ मर्ज हुआ, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ हुआ, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक। ठीक है, ये सब आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड सीएसआर के बारे में, सीएसआर के बारे में आप जानते हैं सीएसआर क्या होता है, corporate social responsibility. Earlier it was treated as a criminal offense. Now they have amended, the government has amended, and it is saying that it should be treated as a non-criminal offense. ये आप याद ध्यान में रखिए। एंड विथड्रॉल ऑफ एंजल टैक्स, ये एंजल टैक्स क्या है, विल सी अबाउट एंजल टैक्स सेपरेटली, बट यहाँ पे ये कह रहा है कि विथड्रॉल ऑफ एंजल टैक्स प्रोविजंस फॉर स्टार्टअप्स एंड देयर इन्वेस्टर्स। ओके, एडिशनल क्रेडिट एक्सपेंशन, ये भी ठीक है, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ये भी ठीक है। अब ये एंजल टैक्स के बारे में हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं, क्या है एंजल टैक्स। एंजल टैक्स ये है कि जो भी स्टार्टअप्स है वो तकरीबन 30% टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, एंड दिस 30% टैक्स इज लेविड एंड स्टार्टअप्स रिसीव एंजल फंडिंग। ये एंजल फंडिंग क्या होता है, कोई भी मतलब हाई वर्थ इंडिविजुअल जो होता है वो जो फंड करता है उसी को एंजल फंडिंग कहते हैं। एंड ये एंजल टैक्स उसी के ऊपर लागू होता है, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में, जैसे मान लीजिए आप अगर 10 करोड़ का स्टार्टअप फंड, स्टार्टअप कंपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, उस 10 करोड़ में से कोई 5 करोड़ दे दिया, उसके पास पैसे ज़्यादा है, वो इन्वेस्ट करने के लिए 5 करोड़ दे दिया, तो 5 करोड़ तो कंपनी को तो बहुत ही आसान से मिल गए। ठीक है, सो वो 5 करोड़ के ऊपर ये गवर्नमेंट ने ये लॉजिक सोचा था कि ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जितने भी आता है और जो स्टार्टअप कंपनी जितने भी कैपिटल से वो सेटअप कर रहे हैं, दे हैव टू पे 30% ऑफ द टैक्स, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंजल टैक्स। आप इतना याद रखिए, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आपको अगर चाहिए तो दीज आर फैक्ट्स। अब ये इंडियन टैक्स को विथड्रॉ करने की बात चल रहा है, मोदी जी ने यही कहा था कि इंडियन टैक्स को विथड्रॉ करना। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं टैक्सेशन लॉस ऑर्डिनेंस 2019 में अनाउंस किया था। इसमें ये था कि कॉर्पोरेट टैक्स, दिस इज अ मेन कंपोनेंट। कॉर्पोरेट टैक्स को अर्लियर हमने देखा था 25% था, अभी 22% हो गया डोमेस्टिक कंपनीज के लिए खाली, रिमेंबर। एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में कॉर्पोरेट टैक्स नया कंपनी के लिए, जो नया कंपनीज है उसको 15% ही रखा है। एंड मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको भी रिड्यूस किया था, और सरचार्ज को भी, कैपिटल गेन्स, दिस आर ऑल दी अमेंडमेंट्स मेड टू राइज दी इकोनॉमी। इकोनॉमी को जो थोड़ा बूस्ट देना चाहिए, इसके लिए ये सारी चीज सोचा गया था। एंड ऑल दीज थिंग्स लीड्स टू व्हाट, कंपटीशन बढ़ेगा, एक कंपनी और दूसरे कंपनी के बीच में अच्छा तगड़ा कंपटीशन हो जाएगा, एंड दे विल गिव ए बेटर प्रोडक्ट। दिस इज अ बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस। इसी दौरान ये मैं लेके आया था कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इसी से कैलकुलेट होता है। दे विल सी व्हाट ऑल आर द टैक्सेस अवेलेबल इन द इकोनॉमी, एंड दे विल डिसाइड कौन सा कंट्री क्या है। तो ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कौन बनाता है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सीधा सीधा इंडेक्सेस के बारे में एक क्वेश्चन तो आता ही है हर साल, तो जस्ट रिमेंबर इन दिस एस्पेक्ट। एंड जीएसटी के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। इस स्लाइड में मैंने ये देखा था कि जीएसटी रेट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, बट हमारा इंटरेस्ट इस पे है जो जीएसटी रेट जो है नील कर दिया। देयर वाज अ क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर, इन 2018 या 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि किस चीज़ में जीएसटी लागू नहीं होता है, किस चीज़ में जीएसटी देयर इज अ नील जीएसटी। तो जस्ट इमेजिन ड्राइड टैमरिन पे जीएसटी नील है, एंड प्लेट्स एंड कप्स मेड ऑफ लीव्स, फ्लावर्स एंड बार्क, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई यूपीएससी, और यही से मिलता है, और कहीं से नहीं मिलेगा आपको। ये डाटा जो है आपको कोई भी मैगजीन में नहीं देते,
इतना डिटेल्ड एनालिसिस आपको करना है गवर्नमेंट स्कीम्स के, एंड दीज आर ऑल द माउथ पीस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट खुद बोल रहा है भैया थोड़ा ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है, एंड यूपीएससी भी यही से पकड़ते हैं। तो आप इतना ध्यान रखिए, ड्राइड टैमरिंड के ऊपर 5% था अर्लियर एंड बिकम नील। ये प्लेट्स, जितने भी प्लेट्स एंड कप्स है लीव्स और फ्लावर बार्क से बनता है, अर्लियर 5% था, अभी नील हो गया। तो ये याद रखिए, ऑप्शंस में अगर ये है तो मार्क मत करिए। एंड इसमें ये दिया था कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है, कोर इन्फ्लेशन क्या है, फूड इन्फ्लेशन क्या है। बेसिक डेफिनेशंस याद रखिएगा। हेडलाइन इन्फ्लेशन 2019 में 4.5% है, कोर इन्फ्लेशन 5.11 एंड फूड इन्फ्लेशन इतना है। हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब द राइज ऑफ प्राइस। इन्फ्लेशन मतलब बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता है, द राइज ऑफ नॉर्मल प्राइस लेवल्स ऑफ कमोडिटीज इन द मार्केट। मतलब जो भी गुड्स आप एक साल पहले, अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में आपको 1 किलो एप्पल्स मिल रहे हैं और एक साल में वो एप्पल का भाव बढ़ के 110 रुपये हो गया, तो वो 10 रुपये जो ये बताता है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी प्राइस, इन्फ्लेशनरी राइस, ठीक है। तो उसी के लिए ये बताता है। उसमें बास्केट में खाली मैंने एग्जांपल बता दिया कि ये एप्पल। सो इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए बहुत काफ़ी तरह का सॉल्यूशंस है, बट बेसिक चीज़ें आपको ये ध्यान में रखना है कि इवन गवर्नमेंट फोकसेस ऑन दिस की टर्म्स। ये की टर्म्स आपको अंडरस्टैंड करना। हेडलाइन इन्फ्लेशन में लगभग सब कुछ आ जाता है, यू नो, एवरीथिंग, मोस्टली बास्केट इज ए बिग थिंग एंड इसमें सब कुछ आ जाता है। कोर इन्फ्लेशन में those things are excluded which are volatile, like food, fuel, these things are excluded from the headline. So core inflation मतलब reflects the actual economy, they will say. core inflation मतलब जो actual target को जो determine करने में core inflation मदद करेगा, मतलब exact rise कितना हुआ, ठीक है, that is excluded. food inflation तो food का हो गया। so these terms just remember। आगे चलते हैं। ये तो पुराना ही डाटा है, हमने देखा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक है। आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में हमने देखा था, स्ट्रेस्ड एसेट्स के बारे में बात किया था। अब ये नया चीज़ है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसके बारे में देखते हैं, ठीक है। डीआरआर फॉर डिबेंचर्स इशूड बाय लिस्टेड कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसीज एंड एचएफसीज। एंड ये हमने पहले भी देखा था, CSR violations decriminalized is one of the important things in the economy, I would say, and now it is treated as civil offense। ये स्टेटमेंट अगर कभी आ जाता है तो घबराइए, ठीक है, आपको करना ही है। NBFC is permitted to use the Aadhaar authenticated, ये तो कॉमन न्यूज़ है। अब ये हम देखते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखिए डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर इज जस्ट लाइक ए शेयर, बट एक अंडरलाइंग एसेट होता है, जस्ट लाइक ए शेयर मार्केट में जो शेयर्स खरीदते हैं कोई कंपनी का, तो वैसे ही डिबेंचर भी ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट है। ये रिजर्व के बारे में हम देखते हैं। डीआरआर, ये डीआरआर इज अ प्रोविजन, कोई भी अगर कंपनी शेयर्स को मार्केट में बेच रहा है या फिर डिबेंचर्स को बेच रहा है, it should have a shock up mechanism या फिर कोई disastrous mechanism फेस करने के लिए कुछ mechanism होना चाहिए, and DRR comes into picture of these aspects। अगर मान लिया कि कोई कंपनी ने bankruptcy हो गया, अगर और उनके इन्वेस्टर्स जितने भी उस कंपनी में इन्वेस्ट जो किया था, उसको बैकअप मैकेनिज्म के लिए ये रिजर्व रखने के लिए गवर्नमेंट ने खुद ये इंट्रोड्यूस किया था अराउंड 2000। ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये था। सो दिस इज ऑल अबाउट डीआरआर। डेप्थ जाएंगे तो जा सकते, बट आई थिंक नॉट मच मोर अबाउट दिस थिंग्स। ये किसको मेंटेन करना है, इंडियन कॉर्पोरेट्स को या फिर कोई कॉर्पोरेशंस को मेंटेन करना होता है, बट दे हैव ईज्ड दिस नॉर्म आल्सो। मतलब कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को थोड़ा अच्छा सा फ्रीली वो काम करने के लिए दे हैव रिमूव दिस क्लॉज आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड
इसमें ये दिया था कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ambitious projects of government of India. There is an expenditure of around 102 lakh crores. 102 lakh crores. Just imagine, it's a very huge and very big amount. And इस प्रोजेक्ट में लगभग all these sectors are developed. Energy sector develop हो रहे हैं, road sector, the percentage of you can see how much investment they are kept in these sectors. ठीक है, आप देख सकते हैं. एंड एक की पॉइंट ये हो सकता है कि सेंट्रल स्टेट का जो शेयर है 39% शेयर सेंटर एंड स्टेट्स का है एंड 22% इज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर. मतलब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी है इसमें. यू कैन सी दिस थिंग्स like a general statement, it will create lot of jobs, improve ease of living, all these things. Majorly ये डेवलप क्या करता है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स को डेवलप करेगा, एनर्जी सेक्टर को डेवलप करेगा, रेलवेज को डेवलप करेगा, अर्बन एंटिटीज को डेवलप करेगा, ऑल दिस थिंग्स. ऐसे स्कीम्स के लिए हम इन डेप्थ देखेंगे, विल मेक ए सेपरेट वीडियो फॉर दीज थिंग्स, बट एज ऑफ नाउ यू कैन रिमेंबर. एंड 102 लाख करोड़ एक मोदी जी का जो फेमस स्टेटमेंट है कि हम टूवर्ड्स $5 ट्रिलियन बनना है 2025 तक. And this project itself is around $1.4 trillion. So this is a very big project. I would say this is very ambitious. इसको ये इंडिपेंडेंस डे के टाइम पर डिक्लेयर किया था हमारा मोदी जी ने. सो दिस इज ऑल अबाउट NIP. आगे एंड न्यूट्रिशन, सॉरी नर्चरिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. स्टार्टअप इंडिया यात्रा में क्या क्या कवर किया था आप, ये डाटा, दिस डाटा इज इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस. से आंसर राइटिंग में ये काम आएगा. ज़्यादा खास नहीं, प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा खास नहीं है, बट दीज थिंग्स विल हेल्प यू फॉर योर एसे एंड आंसर राइटिंग. एंड हाँ, ये प्रीलिम्स का कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि इंडिया इज नाउ ए टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर. ये तो मतलब चौंकाने वाली बात है. हाँ, लोगों को पता नहीं चलेगा कि डिफेंस को तो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. यस, इंडिया इज नाउ एक्सपोर्टिंग इन द लास्ट 3 years. ये देख सकते हैं, इंडिया नाउ एक्सपोर्ट्स डिफेंस प्रोडक्ट्स 42 कंट्रीज. एंड वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं 2018-19 में इट स्टूड एट अराउंड 10,000 crores. इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग ह्यूज फिनोमेनन. तो यूपीएससी में ये एक स्टेटमेंट आ सकता है, अगर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया इंपोर्ट्स डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड इंडिया नेवर एक्सपोर्ट्स डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अगर आ गए तो ये बन सकता है आपका. एंड MSME के रिलेटेड क्रेडिट गारंटी स्कीम लॉन्च किया था एंड इट प्रमोट्स दी स्ट्रेस्ड MSMEs. ठीक है, प्रमोटर्स ऑफ जो लोन्स है या फिर कोई भी स्ट्रेस्ड एसेट्स है MSME का, स्मॉल कंपनीज, स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो उसके रिलेटेड एक स्कीम लॉन्च किया था. इसमें ज़्यादा डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से हम देखते हैं. दिस इज लॉन्च्ड बाय माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री. एंड व्हाट इज दिस क्रेडिट गारंटी स्कीम. दिस विल स्ट्रेंथन द क्रेडिट डिलीवरी फैसिलिटी. अब इसमें मोटा मोटा आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई कंपनी, कोई लेंडर ने इस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन दिया है, मान लीजिए कि 10 लाख का लोन किसी ने दिया है, एंड वो कंपनी लॉस में चले गए और दे आर नॉट एबल टू repay the loan, then this fund will come into picture and they will pay the loan. This is the major criteria of the scheme. Lender will be assured. मतलब आप निर्भय होके आप करिए, आप लोन देते रहिए, हम हैं. दिस इज ऑल अबाउट द क्रेडिट गारंटी स्कीम. ठीक है, एंड फॉर दिस पर्पस दे हैव इंट्रोड्यूस्ड ए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑल्सो. एंड लेंडर्स मतलब कौन कौन लेंडर्स होता है इसमें. लेंडर्स मतलब बैंक्स, जनरली आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs भी आता है इसमें, बट मोस्टली बैंक्स आर, यू कैन से. एंड दिस ट्रस्ट, यू लास्ट लाइन आप देख सकते हैं, द लॉस incurred by the lender up to 50, 75, 80, 85% of the credit facility will be addressed. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट क्रेडिट गारंटी अग्रीमेंट.
credit guarantee scheme. So finally, I would say these are the major important aspects covered from the Transforming India. I would say, I would not say this thing मतलब economy complete हो गया, but these are the major important aspects that you should know. आप अगर कोई चीज पढ़ लिया नहीं पढ़ा वो अलग बात है, बट एटलीस्ट ये सारे चीज अगर आपके ध्यान में है तो एटलीस्ट फ्यू क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व फ्रॉम दीज लाइन्स. ओके, सो ऐसे ही टुडे वी हैव read economy, and coming slides I would make videos on infrastructure, energy sector, इंटरनेशनल रिलेशंस, और हम देखते हैं कि क्या 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 गवर्नमेंट में इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. विल कवर ऑल दोज एस्पेक्ट्स. ओके, ओके, एनीवेज, thanks for watching and thanks for your patience, and all the very best. Maintain your health and happy reading. Thank you.